خادم خادم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خادم کا مطلب کیا ہے؟ ویری سمپل، خدمت کرنے والا۔ کس کی؟ خدا یسوع المسیح کی خدمت کرنے والا۔ اب خادم کو پتہ نہیں کہ میری خدمت کیا ہے، ٹائٹل ہے، نام کے آگے لکھا ضرور ہے خادم، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میری خدمت کیا ہے۔ بڑی دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم فون کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے ملیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہمارے پاس دنیا میں، یاد رکھ لیں، دنیا میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، لیکن خدا کے خادم کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور وہ 24 گھنٹے خدا کے کلام کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے جلال کے لیے تیار رہے، تاکہ جب بھی اس کو خدمت کے لیے کال کی جائے وہ بھاگا اور دوڑا ہے۔ تو بہت سے خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خادم بلائے ہوئے خادم نہیں ہے، بلکہ صرف ٹائٹل وائز ہے، ان کے نام کے آگے ٹائٹل ہے کہ یہ بھی خدا کا خادم۔ ابھی پاسٹر بارو صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ یسوع کا لہو جس کے اوپر لگ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے بھی یہی کہ جیزس بلڈ، جیزس، یسوع کا خون، یسوع کا خون جو ہے اس کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ ویسے تو آپ اس سے عظیم خادم بیٹھے ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں، خدا آپ کو برکت دے، لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا یسوع المسیح کے خون کی قدرت، اس کی قدر اور اس کا مقام کیا ہے۔ بلڈ سے سب واقف ہے۔ ابھی آج بھی عید ہے، لاکھوں کروڑوں بھیڑ بکرے بڑے بیل ذبح کیے جائیں گے، ہر سال کیے جاتے ہیں، لیکن جو میرے یسوع کا خون ہے اس کی ویلیو میں اور ان کی خون کی ویلیو میں کیا فرق ہے، ایک خادم کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہماری تعلیم کمپلیٹ نہیں ہے۔ آج ابھی سیٹرڈے کے روز مجھے کلیسیا میں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ پادری صاحب ہم یہ گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ آج بھی لوگ کنفیوز ہیں، آج بھی لوگوں کے اندر وہ جذبہ، وہ تعلیم اور وہ شعور نہیں ہے جو ایک مسیحی خادم اور مسیحی کلیسیا کے اندر ہونا چاہیے۔ جب روزے آتے ہیں تو پاسٹر کنفیوز ہو جاتے ہیں، جب عید آتی ہے تو پاسٹر پریشان ہو جاتے ہیں، جب کوئی بھی دنیا میں ایونٹ آتا ہے تو وہ پاسٹر کی سر درد بن جاتی ہے، کیونکہ لوگ آج بھی تعلیم سے خالی ہیں، ان کے اندر وہ تعلیم نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو ہاتھ میں پکڑنا پسند کرتے ہیں، ایک دو حوالے دے کر اس کو سنانا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کو ناپنا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک اور تباہ کن حقیقت گناہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک اور تباہ کن جو حقیقت کیا ہے، وہ گناہ ہے، اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے، اور لکھا ہے کہ تمام پریشانی کا سبب اور ہر ایک غم کی جڑ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک چھوٹا سا لفظ گناہ ہے۔ اس گناہ نے انسان کی فطرت کو
मफलूज का रख दिया है। तमाम बीमारियां, हर तरह का बगाड़, हर तरह की तबाही और तमाम जंगों की बुनियादी जड़ ये गुनाह है जो दीवानगी पैदा करता है और दिल को जहर आलूदा कर देता है, और इसे बाइबल में मुअल्लिफ मर्ज भी कहा गया है। ये वो बीमारी है, गुनाह वो बीमारी है जिसको गुनाह की बीमारी लग जाती है, वो मफलूज हो जाता है। वो तंदुरुस्त तो होता है, हर दुनिया में उसके पास नेमत है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो है वो खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत को खो देता है। और वो उसकी जिंदगी में सिवाय परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। और लिखा है कि गुनाह वो तूफान है जो थमने का नाम नहीं लेता, ये आतिश फशा है। गुनाह दौड़ता हुआ शेर बबर है और अपने शिकार की तलाश में रहता है। गुनाह कैंसर है जो गुनाह इंसान की रूह को अंदर ही अंदर खा जाता है और कमजोर कर जाता है। अब हमारा जो मजमून है वो है यीशु मसीह का लहू। एक ही दुनिया में एक ही टॉनिक है, एक ही वसीला है, एक ही बड़े का खून है जो इस गुनाह की अलामत से मुझे और आपको बचा सकता है। हमारी रस्मातें किसी काम की नहीं है, हमारे हदियाजात किसी काम के नहीं है, हमारे तौर तरीके जो इंसान ने अपनाए हैं किसी काम के नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक वाहिद यीशु नाम है जिसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और कलाम मुक़द्दस में अगर हम इब्रानियों 9 बाब और उसकी 22 आयत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं। सब चीजें किससे पाक की जाती हैं? यीशु के खून से, और बगैर खून बहाए क्या है जी? माफी नहीं है। अब मसीह यीशु के खून में कौन सी ऐसी खुसूसियात है? जीसस ब्लड हैव 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। यीशु मसीह के खून में 5 ऐसी खूबियां हैं जो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि जिसके वसीला से हम फरदौस में चले जाते हैं, जिसके वसीला से हम आसमान के शहरी बन जाते हैं, जिस खून के वसीला से हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं, खुदा के भेजे बन जाते हैं, खुदा के मंसूर बन जाते हैं, खुदा के शहर के शहरी बन जाते हैं। और वो यीशु मसीह का खून है, और कोई ऐसी ताकत कुव्वत नहीं है जो मुझे और आपको बचा सके इस गुनाह से। सबसे पहली जो खूबी है खुदा यीशु मसीह के खून में, नंबर 1 कि यीशु का खून जो है वो हमें खलासी देता है। क्या देता है जी? किन चीजों से? गुनाह से। गुनाह से हमें वो खलासी देता है, रिहाई देता है और हमारे लिए नजात का बाइस बनता है। पहली खूबी मसीह यीशु के खून में जो है वो है कि वो खलासी देता है। पहला पतरस उसका 1 बाब और उसकी 18 और 19 आयत में ये बात लिखी हुई लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दाता से चला आता है उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बड़े यानी यीशु मसीह के खून से हुई है। खलासी किससे हुई है? न बैल के खून से, न ऊंट के खून से,
न बकरे के खून से, न आदमी के खून से, न किसी हलाल चीज के खून से, बल्कि एक ही हस्ती है और उसका नाम खुदाम यीशु मसीह है, जिसके खून से मैंने और आपने खलासी पाई है। कौन सी खलासी? गुनाह, कोई और नहीं। मसीह यीशु ने अपना पाप खून बहाकर पास्टर आजाद साहब मुझे और आपको खरीद लिया है। अब इसके बाद अगर आज भी मसीह कौम सवाल करती है तो ये बेवकूफ़ी है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ग्रंथिस काव्य में क्या लिखा है? पहला ग्रंथिस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि उस बड़े के खून ने मुझे खलासी बख्शी, मुझे रहाई दी है। और यहाँ पर भी यही बात पतरस फरमाता है कि सोने चांदी हीरे जेवरात से नहीं, रुपया पैसा फेंकने से नहीं, बल्कि मसीह यीशु के सलीब पर चढ़ जाने से, उसका पाप खून बहाने से मुझे और आपको अब्दी खलासी मिली है। खलासी नहीं बल्कि अब्दी खलासी मिली है। अब मेरी बेटियां और बेटे, मेरा खानदान, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, आप सब लोग बेदाग हैं, क्योंकि जिसने आपके लिए खून बहाया है वो भी बेदाग है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी जो खलासी है वो सोने चांदी हीरे जेवरात से नहीं हुई, बल्कि एक बेदाग और बेऐब बड़ा। मसीह यीशु ने क्या कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा? सब ने खुद गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। नंबर 2, जो दूसरी खासियत है, खुसूसियात है मसीह यीशु के खून में, वो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। क्या करता है जी? यीशु का खून हमें एक दूसरे के करीब लाता है। मैं पास्टर बाबर को नहीं जानता, पास्टर बाबर मुझे नहीं जानते, मैं पास्टर तारक साहब को नहीं जानता, पास्टर तारक साहब मुझे नहीं जानते थे, मैं बहन समरीन को नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन एक ऐसी मेरी और इन सब की पहचान बनी, और उस पहचान का नाम खुदाम यीशु मसीह है, और उसका पाक खून है जो मुझे और आपको एक दूसरे के करीब लेकर आया। हालेलुया। और ये हमारा पड़ेगा इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का कार्य, उसका 2 बाब और उसकी 13। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु के खून के सबब से हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। रंजिशें खत्म होगी, बिदतें खत्म होगी, लड़ाई झगड़े गुस्से तफरके बिदतें, हर तरह का गुनाह यीशु के खून से पाक हो चुका है, और आज हम एक खानदान की सूरत में एक दूसरे के करीब हैं। ये किसके वसीले से हुआ? खुदाम यीशु मसीह के खून के वसीले। आज का हमारा टॉपिक है जीसस प्लान। दुनिया धोखे में है। खुदाम की खास बात, खुदाम ने मसीहों को धोखे में नहीं रखा, लेकिन अफसोस कि मसीह खुद धोखा खाते हैं। मसीह तो खुद धोखा खाते हैं। ईमान की कमी, मोहब्बत की कमी, तालीम की कमी, एक दूसरे से ना मिलने की कमी, एक दूसरे से ना सीखने की कमी है। ये जब इतना बड़ा प्लान मेरे खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के जरिए से अदा कर दिया है, तो फिर मुझे और आपको कौन मसीह की बातों से जुदा है? मसीह यीशु का लहू मुझे और आपको एक दूसरे के क्या लेकर आया है? करीब लेकर आया है। नंबर 3,
नंबर 3 है जी, ये सुलह करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सुलह करवाता है। कुलसियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 1 बाब और उसकी 20 आयत की हम तलावत करें। तवज्जो फरमाएं। पहली खास खूबी क्या थी तो बता सकता है? पहली मसीह यीशु के खून में खास खूबी क्या थी? पहली तो बता सकता है? गुनाहों की मुआफ़ी, खलासी देता है। नंबर 2, ये हमें करीब लाता है। और नंबर 3 है, ये सुलह करवाता है। और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मिलाप करे। हालेलुया। कौन सा खून? वो खून जो सलीब पर बहा सुलह करके, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों के खून को गुनाह को माफ किया। वहां के जो उस वक्त के हुक्मरान थे उनकी गलतियों खताओं को माफ किया, मेरी और आपकी गलतियों खताओं को माफ किया। और आसमान पर एक गीत गाया गया कि आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद हो, जिनसे वो राजी है क्या? सुलह। मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। और यहाँ पर लिखा है कि उसने सलीब पर जो खून बहाया है, सुलह करके हम एक दूसरे से क्या करें? क्या करें? मेल मिलाप करें। मसीह का खून सुलह करवाता है। और आज बड़े अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा तो फर्क बिदते खुदा के खात्मों में, जिसमें मैं भी शामिल, जिसमें मैं भी शामिल। इसका मतलब है कि अभी तक हम यीशु मसीह के खून से वाकिफ नहीं। हर खादम को सुलह के ताबे रहना चाहिए। अगर कोई गुनाह उसके खिलाफ करता भी है तो खादम माफ करे। अगर कोई खादम के खिलाफ है तो खादम उससे सुलह करे, क्योंकि मसीह यीशु ने जो सलीब पर खून बहाया है वो वहां पर लिखे हैं कि सुलह करके एक दूसरे से मिलाप करें। आज सबसे ज्यादा परेशानी खादमों में है, दूरियां खादमों में है, रंशे खादमों में है, मिलाप नहीं है, एक दूसरे के करीब नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अभी तक हम उस सही पॉइंट पर नहीं पहुंच सके जहां पर एक खादम को पहुंचना चाहिए। मसीह यीशु का नाम क्या करता है जी? सुलह करवाता है। नंबर 4 है जी, ये रात बात ठहराता है। यीशु के खून की बात हो रही है। ये क्या करता है जी? रात बात चढ़ाता है। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम कहते हैं जी, उसका 5 बाब और उसकी 9 की तलावत करेंगे। तवज्जो फरमाइए। रोमियो 5 बाब 9 में लिखा है, पर जब हम उसके खून के बायस अब रास्त बात ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर बच जाएंगे। क्या कर जाएंगे जी? बच जाएंगे। किसके खून से हम रास्त बात ठहरे? खुदाम यीशु मसीह के खून से हम रास्त बात बनते हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसी शरीयत अब कायम नहीं रही, बल्कि आज मैं आपको छोटा सा खुदा का खादम हो तो एक बात बताना चाहता हूँ कि मसीह यीशु ने मसीही कौम से तमाम खूनी शरीयत को खत्म कर दिया, क्योंकि उसने अपना पाक खून बहाकर वो तमाम शराइत को पूरा कर दिया जो खुदा अपने लोगों से चाहता। अब हमें इस खून की पहचान करनी है, इसकी कदर करनी है और मसीह यीशु में रहकर अपनी जिंदगी बसर करनी है। हम रात बात कैसे ठहरे? खुदा यीशु मसीह के पाक खून से जो उसने सलीब पर बहा।
आगे नंबर 5 है, उसका खून हमें पाक साफ करता है। क्या करता? 2 लफ्ज, उसका खून हमें पाक और साफ करता है। पहले यूना 1:7 है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। ये मैं आधी आयत पढ़ रहा हूँ, ये मैं आधी आयत पढ़ रहा हूँ। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? अब कौन सी कुर्बानी बाकी रहेगी? कौन सी शरीयत बाकी रहेगी? कौन सा गोश्त रह गया? क्यों आज भी हम अंधेरे में हैं? क्यों आज भी हम दुनियादारी की रस्म और रिवाज में फंसे हैं? ईद किसी की है, स्यापा मसीह का उनको पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मसीह को नहीं जानते, ना उसके खून की इनको कदर। तो लिखा है कि यीशु से क्या जो खून है, जो उसने सलीब पर बहाया है, वो हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी? पाक करता है, साफ करता है। तो आप और कोई भी ऐसी कुर्बानी नहीं रहेगी जो बनी इंसान के लिए अदा की। झूठी तसल्ली खुदा पसंद नहीं करता, फ्रेब धोखा खुदा पसंद नहीं करता। खुदा सच्चाई का बानी है, खुदा रियलिटी को पसंद करता है, खुदा मसीहों का खुदा है। लेकिन अफसोस कि आज भी मसीही लोग अंधेरे में है, क्योंकि हमारा टॉपिक है यीशु मसीह का खून। और यीशु मसीह के खून में 5 ऐसी कुदरत पाई जाती है जिससे हमारा ईमान बढ़ता है। नंबर 1 है कि वो क्या करता है कि हमें अपनी खलासी देता गुनाहों से। नंबर 2, वो हमें करीब लाता है। नंबर 3, वो सुलह करवाता है। नंबर 4, वो रास पार जगाता है। नंबर 5, वो हमें हमारे गुनाहों से पाक और साफ करता है। ये यीशु मसीह के खून की ताकत है, ये कुदरत है उसकी। और मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो एक पास्टर था जिसका नाम ब्रूस हील था। तो वो पूरी टीम लेकर उस जगह पर गए जहां पर मसीह यीशु को सलीब दिया गया। अब जिस जगह पर सलीब दिया गया, तो वो अपने साथ वो आला औजार लेकर गए कि हम देखें कि वो खून जो यीशु मसीह का पत्थरों पर गिरा है उसकी वैल्यू क्या है। और जब उन्होंने वहां से नमूना लिया तो बिलीव करें, तो उस खादिम ने लिखा कि जब मैंने माइक्रोस्कोप से उस खून की वैल्यू को देखा तो उसका खून आज भी ताजा, आज भी उसमें जिंदा ब्लड के जरासीम है, आज भी उसका खून जो सूखा नहीं बल्कि तरोताजा है। और जो कोई भी उस खून को छू लेता है वो शिफा पा जाता है। ये यीशु के खून की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के खून में कुदरत पाई जाती है। मेरे अजीजों, लिखा है कि उसने तमाम जहानों का गुनाह अपने ऊपर उठा और सलीब पर चढ़ गया। और लिखा कि अब कोई दोबारा कोई कुर्बानी नहीं होगी जो मुझे और आपको हमारे गुनाह से खलास। मेरा और आपका यीशु, मेरे अजीजों, जो सलीब पर चढ़ा, आज उसकी कुदरत देखें कि जब हम यीशु के लहू से किसी को मसा करते हैं तो वो शिफा पाता है, मुर्दे जिंदा होते हैं, उसके खून में कुदरत पाई जाती है। मेरे अजीजों, मसीह यीशु कोई आम हस्ती नहीं, ये बहुत बड़ी हस्ती है। क़यामत और जिंदगी का मालिक कौन है? यीशु मसीह। हमेशा की जिंदगी किसके पास है? आलम अरवा की कुंजियां किसके पास है? 7 मोहरे तोड़ने का इख्तियार किसके पास है? न्यू यरूशलेम के दरवाजे का जो सबसे पहला जो सीटेड होगा वो कौन होगा? यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है कि बड़े का लहू, बड़े का जो लहू है,
जिनके माथे पर उसकी मोहर होगी वो उस नए ऐश्वर्य में दाखिल होंगे और मसीह यीशु के चेहरे का जलाल उस शहर को क्या करेगा? रोशन करेगा। तो जिंदगी में एक बात याद रखें कि मसीह यीशु को पहचाने, उसके खून की कदर करें। मसीहों पर कोई दूसरी कुर्बानी नहीं है, कोई ऐसा नजराना फिदिया नहीं है जो मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर सके। हमारी कुर्बानी हो चुकी है, हमारे गुनाहों की खलासी हो चुकी है, उसने हमें पाक कर दिया है, उसने हमें रास्तबार ठहरा दिया है, वो हमें करीब लेकर आया है, उसने हमें अपने गुनाहों से पाक और साफ कर दिया है। ये खुदा यीशु मसीह के खून में कुदरत है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह के मुताबिक लिखा है कि नूर से नूर जुदा हुआ तो मसीह बन गया, मसीह जमीन पे आया तो इंसान बन गया, मसीह की जुबान से जो निकला लफ्ज तो कलाम बन गया, मसीह ने रिज़्क दिया तो वो राज़क बन गया, मसीह ने बीमारी दूर की तो तबीब बन गया, मसीह ने शिफा दी तो वो शाफी बन गया, मसीह ने तालीम दी तो वो उस्ताद बन गया, मसीह ने खिदमत की तो खादिम बन गया, मसीह जब सलीब पे तो बेऐब बरा बन गया, मसीह सबके गुनाहों का कफारा बन गया, मसीह ने मौत को शिकस्त दी तो फातेह बन गया, मसीह जब जलाल में आया तो खुदा बन गया। खुदा आप सबके इस कलाम के वसीला से बरकत आपको। आमीन।